ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपने देखा है सबसे पहले क्या है, फ्रिक्शन अपोजेस द, पहले में क्या होगा बेटा, मोशन बिटवीन द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. द फर्स्ट आंसर विल बी द फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. द नेक्स्ट वन इज आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, कहाँ पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ द सर्फेसेस. द सेकेंड आंसर विल बी द नेचर ऑफ द सर्फेसेस. द थर्ड वन इज द फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन हमेशा हीट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. जो कैरम बोर्ड पे स्प्रिंकल करते हैं हम, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. नाउ वी हैव टू कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. चौथा देखिए क्या है, सपोज यू आर राइटिंग, डेस्क is tilted a little, a book is kept on it, start sliding down, show the direction of the friction force acting on it. You have to show the direction, means in which direction the force of friction is applying on that particular book. The book is sliding from the table which is tilted towards our side or tilted towards any side. Now the book is sliding from that particular table and frictional force is applied on that particular book. Then the condition may be the frictional force will be opposite to the book. The direction of the book in which the direction in which the book is moving, the frictional force will be opposite from that particular direction. Then the answer of this question will be the frictional force is opposing force generated by the two surfaces that contact and slide against each other. Means the forces are in opposite directions, means if the motion is in south direction, then the force will be in the north direction, that is the force of friction will be in north direction. So the frictional force will act in a direction opposite to the direction of motion of the book, that is downwards. If the book is coming from upward to downward, here the condition is like that, we have tilted the table and the book is moving from upward to downward. The book is moving from upward to downward, means the book is in motion from upward to downward in direction. So the friction will act on this book from downward to upward, means in the opposite direction of the particular book which is sliding from the table. So hence the frictional force will exert in the upward direction when the book is sliding downward. Book is sliding towards the downwards and the frictional force will apply towards the अपवर्ड डायरेक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि बुक हमारी नीचे की तरफ आ रही है, बिकॉज द टेबल इज टिल्टेड टुवर्ड्स आवर सेल्फ. टेबल जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है इस वजह से. गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश a similar heavier box on the same floor. Who will apply the larger force and why? Obviously Seema will apply the larger force if the surface is same. If the surface will be remain same, then Seema will apply the more force as compared to the किसके कंपेयर में, इकबाल के कंपैरिजन में. इकबाल के कंपैरिजन में सीमा जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी. क्यों? क्योंकि सीमा का ऑब्जेक्ट बड़ा है, surface area ज़्यादा है, and when the surface area will be more, then Seema will apply the larger force than the इकबाल. क्योंकि फ्लोर तो सेम है. मान लो फ्लोर कंक्रीट का हुआ, मान लीजिए फ्लोर इसका ही हुआ, आपके जो नॉर्मल घर में मार्बल का फ्लोर है, ठीक है, मार्बल का फ्लोर है, फिर भी सीमा विल अप्लाई द ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू इकबाल, बिकॉज Seema, the object which the Seema is having is has occupies the larger area as compared to Iqbal.
सो इफ द सरफेस एरिया विल इंक्रीज द फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा हमारा, ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। इसमें देखिए द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज in the sliding friction the interlinking between the two surface is for very short time, thus the two surface could not properly come in contact with each other, but it is not in the case of static friction, as the two surface in static friction from contact properly। दोनों बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज़्यादा टाइम के लिए कांटेक्ट में होते हैं एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन द केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मच इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, दे आर कांटेक्ट इन ईच अदर फॉर वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। दैट इज वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जो दोनों बॉडीज़ हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की में वो स्लाइड हो रहा है तो दोनों के बीच में जो कांटेक्ट ऑफ टाइमिंग है दैट इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू स्टैटिक। स्टैटिक में बॉडी स्टैटिक मोशन में है या फिर सीधे खड़ी हुई है तो दोनों के जो कांटेक्ट हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए हैं। व्हेन द टाइम पीरियड विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज वाई द स्टैटिक फ्रिक्शन इज लार्जर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसी का कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम क्लास, एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन इज गिव एग्जाम्पल टू शो द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। Beta, in this question you have to write like this, the first one is friction as a friend and you have to write the 2-3 lines of the friction as a friend, and the next you have to write like the friction as a foe and 2-3 lines you have to write about the friction as foe, ठीक है। इसमें आपको लिखना है just like the friction as act as a friend, इसमें आपको कैसे लिखना है, if the friction would not have been there we would not have been able to walk। एज अ फ्रेंड की बात कर रही हूं मैं, फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड में पहला पॉइंट देखिए क्या है कि अगर फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर वी विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड में देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन पेंसिल एंड पेपर अलाउ अस टू राइट। द नेक्स्ट वन इज इट इज नेसेसरी व्हेन यू वांट टू होल्ड आइटम्स एंड प्रिवेंट द स्लिपिंग और स्लाइडिंग। ऑब्वियसली कोई भी सामान आपने पकड़ के रखा है तो उसको स्लाइड या स्लिप होने से बचाने के लिए वी नीड फ्रिक्शन। तो 3 हमने आपको बताए हैं इन विच द फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज अ फ्रेंड। नाउ द फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज अ फो, इसमें क्या आप लिखेंगे, टायर्स ऑफ द कार एंड सोल्स ऑफ द शूज वेयर एंड टीयर आउट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। द नेक्स्ट वन इज friction between the different part of machine produce heat, this can damage the machine। The next one is the friction causes the wearing of over bridges at railway station, ठीक है। तो 3 आपके फो भी हो गए। तो next one is explain why the object moving in a fluid must have special shapes। ऑब्वियसली मछली का एक आपने देखा था फिशेस का पर्टिकुलर शेप होता है दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी। द फिशेस आर हैविंग द स्ट्रीमलाइन बॉडी बिकॉज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेस हो सके और वो आसानी से वाटर में मूव कर सके। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ ऑपोजिंग फोर्स विच ट्राइज टू ओपोज द मोशन थ्रू आउट द फ्लूइड। ऑब्वियसली वी हैव टू मूव इन द फ्लूइड और वहाँ पे ऑपोजिंग फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि पानी बह रहा है, ठीक है। वाटर देयर इज अ फ्लूइड, अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड भी तो फ्रिक्शन और लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही पर फ्लूइड भी वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा और फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स एयर के फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है बेटा। दैट इज वाई all the animals or all the things which are present in the body, or if they have to survive in the fluid, they should have the special shape.
दिस ऑपोजिंग फोर्स इज नोन एज द ड्रैग फोर्स. बेसिकली इस ऑपोजिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. बाय गिविंग द ऑब्जेक्ट एज अ स्पेशल शेप, and I'll share you the shape that is streamline shape, just the shape like the fishes that is the streamline shape. And the opposing now the force of friction acting on it can be minimized and hence it become easier for body to move through the fluid. तो उस पर्टिकुलर शेप से क्या होता है, बॉडी में जो मूवमेंट होता है फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करते हैं और मूवमेंट को आसानी से करा सकते हैं. बेसिकली फिशेस में पूछा जाता है तो फिशेस में जो हमारा फ्रिक्शन है बॉडी है दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी. इसी वजह से देखो जो शिप्स होती हैं उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन ही बनाई जाती है. वाई? टू रिड्यूस द मैक्सिमम फ्रिक्शन. मैक्सिमम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए the body of the ships are made up of, or the boat are made up of like the streamlined body like the fishes. उनकी बॉडी बेसिकली फिशेस की तरह बनाई जाती है ताकि वो क्या कर सके, आसानी से वाटर में मूव कर सके. ठीक है, उनकी बॉडी इस तरह से इसलिए बनाई जाती है ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके वहाँ पे. ठीक है. नाउ एनी प्रॉब्लम क्लास? Beta, you have to send on the Teams. PDF, you have to send in the form of PDF, beta. You can share the images also, but it will be better if you will share the PDF. Okay? You can share the images also, but it will better for you because images can be upward and downward. एक बच्चे का ऊपर हो गया, दूसरे बच्चे का इमेज नीचे हो गया, तो it will be better for you to send the PDF in spite of images. Okay class, thank you.